हाँ जी बेटे, तो ऑन दैट डे, ऑन फ्राइडे और थर्सडे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चाइना. तो चाइना started, became a republic in 1949, and then it started its first 5-year plan in which year? 1953. India started, this data you have to learn, India started first 5-year plan in 1951 with the establishment of planning commission. China ने start किया in 1953 and Pakistan ने start किया 1956. Within a span of 5 years, all these countries, they followed the path of development, this planned development. Okay. Then after that, what do we see? That by the time 1978 came, China started its reforms, because with the by observing the result of various campaigns or programs which it initiated earlier, then China felt that these are not going to be successful, we have to make some changes. और वो कौन से प्रोग्राम थे? उन्होंने स्टार्ट किया था this great leap forward program, in which they undertook this reforms in as per their attitude. Commune system was adopted in agriculture. Then people were forced to start any industrial unit in the backyard of their homes. Backyard होता है आंगन में, मतलब घर के पिछवाड़े में. तो पिछवाड़े का मतलब है कि भी अपने घरों में जो भी थोड़ा बहुत whatever people could do, they were asked to start any secondary sector unit, industrial, जितना कोई कर सकता है as per their investment. Then they started this under the leadership of Mao Zedong, उनके leader थे. Then they started, that leader started this great proletarian cultural revolution. So on that day, I told you this cultural revolution name seems to be cultural, but otherwise there was nothing related to culture. Only those people who were opposing the policies of Mao Zedong, they were imprisoned. They were given critical punishments. They were given strict punishments. कोई भी, no one was allowed to oppose the policies. And especially youth of the country, they were asked, professionals of the country, they were forced to do work in the countryside. Countryside means villages में, for 2 years at least, to give their contribution in the development of country. Whether those people liked or not, but they were compelled to do work. Means forceful actions were taken. Why these forceful actions were taken? Because there was and there is the rule of this single party, Communist Party of China. So due to that single party dictatorship, they have been able to do all these things. But these things, this type of things are not possible in a democratic country like India or in any other country of the world, जो भी democratic है, ठीक है? So this was all about main. These two programs are important for 3 or 4 marks question, Great Leap Forward especially. Then we started just this Pakistan, just start ही किया था. तो Pakistan, our immediate neighborhood, got partitioned from India. I was listening to one lecture, तो उसमें लिखा था कि when we say independence of India, this was really an important line. तो he said, that person said, orator, कि we should not say independence. हमारी इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी. इंडिपेंडेंस का मतलब तो ठीक है, politically Britishers they left India, that is okay, but our country got divided. वो हमें पार्टीशन, हमारे ही कंट्री, आप सोच के देखो, हमारी एक आर्म को कोई काट दे, हमारी राइट या लेफ्ट आर्म को कोई, और दोनों ही काटेगी, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, है ना. तो हमारे ही कंट्री को काट दिया गया. तो दैट डे इज द सैडेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री. तो पार्टीशन हुआ, चलो एनी हाउ दैट कंट्री फील्स की भी इट वाज देयर इंडिपेंडेंस. तो फिर उसके नेबरहुड में तो ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, ऊपर वाली साइड पे अफगानिस्तान है, देन वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान के ईरान है, फिर आगे इराक है, आगे गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है. तो ये मेन उसका ज्योग्राफिकल है. देन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, दैट इज नियर अबाउट 21 करोड़ के अराउंड है, 21.05 समथिंग अराउंड दैट, तो उतनी है. एंड पाकिस्तान इज द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री वर्ल्ड में. नंबर 1 कंट्री इज इंडोनेशिया, वहाँ पे 22 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन. और पाकिस्तान की है 21 करोड़ के आसपास. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन इंडिया तकरीबन सेम पॉपुलेशन, 19 करोड़ के आसपास मुस्लिम्स आर लिविंग इन इंडिया ऑल्सो. तो हार्डली 2 करोड़ का ही डिफरेंस है. तो अराउंड एक रफली मोटा एस्टिमेट करें तो इंडिया पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन एक तरीके से बिल्कुल एक आसपास ही है, ठीक. तो ये उनका है. और दे कॉल देमसेल्व्स इस्लामिक रिपब्लिक बिकॉज एंड व्हेन दे गॉट पार्टीशन, तो उन्होंने अपने आप को इस्लामिक मुस्लिम कंट्री अनाउंस किया, ठीक. उसके बाद क्या है, हमारा इकोनॉमी का मेन है. तो पाकिस्तान ऑल्सो एडॉप्टेड द सेम सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी.
coexistence of private and public sector, just like our own country. Then they also followed the same type of policies in their agriculture also. जैसे अपने यहाँ research was done, green revolution took place. In the same manner, Pakistan में भी agricultural side पे they also made development, followed the path of green revolution. बिकॉज पाकिस्तान में भी जो मेन है वो एग्रीकल्चर ही है, कोई ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नॉट डेवलप्ड देयर, मेन एग्रीकल्चर के ऊपर देयर डिपेंडेंसी इज मोर. ठीक है, उसके बाद है इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज. इसमें आई थिंक आई वाज टेलिंग यू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना. इफ यू रिमेंबर, तो इन आवर कंट्री विच टाइप ऑफ पॉलिसी वी फॉलोड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी. अपने कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. ठीक है, तो उसके लिए इंपोर्ट्स के ऊपर हाई टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ताकि फॉरेन से आने वाली चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएं. अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि अपनी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है, सामान है, वही अपने कंट्री में सेल हो. ठीक, तो ऐसे ही पाकिस्तान ने क्या किया, दे कंबाइन टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स. Now I don't think there is need to explain consumer and capital good, you are well familiar. तो जो consumer goods industry थी वहाँ पर उन्होंने क्या किया, टैरिफ प्रोटेक्शन, मतलब फॉरेन से आने वाली कंज्यूमर गुड्स से अपनी डोमेस्टिक चीज़ों को बचाने के लिए फॉरेन की चीज़ों के ऊपर दे ऑल्सो इम्पोज टैक्सेस. टैरिफ माने टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स. एंड देन टुगेदर विद डायरेक्ट इम्पोर्ट कंट्रोल्स ऑन कंपीटिंग इम्पोर्ट्स. कंपीटिंग इम्पोर्ट्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो अपने यहाँ भी बनती हो, अपने इकोनॉमी में भी बनती हो, प्लस वो फॉरेन से भी जिनको मंगवाया जाता हो. ठीक है, अपने यहाँ भी बन रही है और फॉरेन से भी आ रही हूँ. तो उसका मतलब क्या होगा, फिर दोनों टाइप की चीज़ों के बीच में कंपटीशन होता है कि फॉरेन से आने वाली चीज़ हमें जैसे ये फ़ोन है, इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जापान से या कोरिया से भी आ रहे हैं. तो देखना ये पड़ेगा कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन हमें महंगा पड़ रहा है कि कोरिया से आने वाला सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है. कंपैरेटिव एनालिसिस होगा. तो उन्होंने क्या किया कि जो जिन चीज़ों के साथ उनकी अपनी डोमेस्टिक चीज़ों का कंपटीशन था, इंपोर्ट हो रही थी, उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया. मतलब सिंपल वर्ड्स में उनके ऊपर भी टैक्स लगाया, मतलब अपनी चीज़ों को प्रमोट किया. ठीक है, देन अनदर इज इम्पॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. 1970s का जो डेकेड था, 1970s के डेकेड के बिगनिंग में क्या हुआ, डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1971? क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. वॉर हुई थी तो बांग्लादेश गॉट सेपरेटेड, तो बिल्कुल इन द बिगनिंग ऑफ 1970s 71 में. तो उसके बाद उन्होंने अर्ली 70s में क्या किया, उन्होंने दे स्टार्टेड गिविंग मोर रोल टू पब्लिक सेक्टर. नेशनलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया. जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज थी, हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज थी, उनको नेशनलाइजेशन मीन्स दे अंडरटुक दोज इंडस्ट्रीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर में उनको अपने साथ मिलाया. बट लेटर ऑन विद इन ए स्पैन ऑफ 9 to 10 years, जब तक वो 70s 80 तक का टाइम आया, देन दे रियलाइज कि भाई पब्लिक सेक्टर की ओवर डोमिनेंस इज नॉट गोइंग टू हेल्प टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. देन दे स्टार्टेड डी नेशनलाइजिंग. नेशनलाइजेशन होता है व्हेन गवर्नमेंट टेक्स कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, और डी नेशनलाइजेशन होता है व्हेन गवर्नमेंट रिलीजेज इट्स कंट्रोल, छोड़ देती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देती है. तो वो डी नेशनलाइजेशन कर दिया. मतलब उनको 10 years में ही समझ आ गया कि ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल सक्सेसफुल नहीं होता है इकोनॉमी में. देन प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया. जब डी नेशनलाइजेशन है मीन्स व्हेन गवर्नमेंट स्टेप्स बैक, तो फिर कौन सा सेक्टर आगे आएगा? प्राइवेट सेक्टर वाज एनकरेज्ड फॉर इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन. ठीक है, देन फाइनेंशियल सपोर्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब है कि जो पाकिस्तान है, नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं कि एनी कंट्री व्हेन इट वांट्स टू सेव इट्स फॉरेन करेंसी या वांट्स टू अर्न फॉरेन करेंसी, तो एक सिंपल सा एक ही तरीका है जो बड़ा बेसिक सा है, टू बाय फॉरेन करेंसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सपोर्टिंग थिंग्स. ये अर्न करने का तो यही तरीका है ना, अपने यहाँ सामान बनाओ, बेचो और फॉरेन करेंसी को अर्न करो. बट पाकिस्तान, इंडिया ने तो यही पॉलिसी अडॉप्ट की, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. भी अपनी करेंसी को बचाओ बाय सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्टेड थिंग्स, अपने यहाँ बनाने का एफर्ट करो और अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करो. तो कोई भी लॉजिकल कंट्री यही तरीका लगाता है. ठीक, बट पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अटेंशन वाज नॉट पेड. व्हाट डिड दे डू? उनको जो फॉरेन करेंसी मिली उसके 2 reasons थे. एक तो उनके पॉपुलेशन जो है, लार्ज पार्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन दे आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज. गल्फ कंट्रीज में भी ये सऊदी अरेबिया, अपना ये बहरीन, ओमान, कतर, दुबई, इन कंट्रीज में जो भी ये गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं. ज़्यादातर पॉपुलेशन, मतलब
जाते तो अदर कंट्रीज में भी हैं, बट ज्यादा मेजोरिटी ऑफ देयर माइग्रेटेड पॉपुलेशन हु आर वर्किंग अब्रॉड, दे आर वर्किंग इन एम्प्लॉयड इन गल्फ कंट्रीज। तो गल्फ कंट्री से जो उनकी फॉरेन एक्सचेंज आती है, एक तो उनका ये सोर्स है, एक्सपोर्ट नहीं है ज्यादा उनके, और सेकेंड सोर्स है कि जो पाकिस्तान है जियोपॉलिटिकली का मतलब अगर वर्ल्ड के मैप के ऊपर देखें तो उसकी पोजीशन इस तरह से है कि इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली अमेरिका। आपको थोड़ा सा अगर याद हो, ये पॉलिटिकल रीजन है, अमेरिका के साथ पहले सोवियत यूनियन होता था, 2 सुपर पावर्स वर देयर 95 से पहले तक, ठीक है। तो उनकी आपस में बड़ी टसलबाजी होती थी, बड़ा एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर भी चलती रहती थी। तो सोवियत यूनियन के ऊपर अपना दबदबा रखने के लिए सोवियत यूनियन और पाकिस्तान के बीच में आ जाता है अफगानिस्तान। तो वहाँ पर कंट्रोल रखने के लिए अमेरिका ऑलवेज प्रमोटेड पाकिस्तान, उसको प्रोटेक्शन दिया, उसको वेपन्स दिए, उसको पैसा दिया, मनी दिया, हर तरह से हेल्प की, और वही उनकी एक आमदन का एक जरिया था। मतलब पाकिस्तान कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाया बिकॉज उसको हमेशा से ही मांगने की आदत रही, आप अपने आप ही मिल जाता था। अब नहीं मिलता है तो अब नाउ दैट कंट्री इज इन बेगिंग पोजीशन, अब मांगना पड़ता है, ठीक है। तो ये उनका एक मेन सोर्स रहा। उसके बाद है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन इन 1988। ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चाइना में रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन इन 1978, उसके एग्जैक्टली 10 ईयर्स के बाद 88 में पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स रिफॉर्म्स, और उसके 3 ईयर्स के बाद 91 में इंडिया स्टार्टेड। मतलब इन द रेस इंडिया वाज द लास्ट वन टू स्टार्ट इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। लेट अस रिकॉल कहाँ स्टार्ट किया उन्होंने। 78 में चाइना, 88 में पाकिस्तान एंड 91 में इंडिया। और प्लान्स कब हुए? इंडिया 1951, चाइना 53, पाकिस्तान 56 में, ठीक। ये याद कर लेना अच्छे से आपने। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब मेन कंपैरिजन पार्ट इज कमिंग। फर्स्ट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, फर्स्ट कंपैरिजन। नाउ डेमोग्राफी का मीन, डेमोग्राफिक वर्ड तो बाद में बनता है, व्हाट इज मेंट बाय डेमोग्राफी? डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे हम कहते हैं ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ अर्थ, मिनरल्स, रिसोर्सेज, जो भी अर्थ पे मिलता है उसकी स्टडी। तो ऐसे ही डेमोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो एनिमल्स की भी हो सकती है, कोई चीज़ों की भी हो सकती है, स्टैट्स में हम पढ़ते हैं ना, पॉपुलेशन ऑफ एनी वेरिएबल कैन बी देयर, बट हियर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो अब ह्यूमन पॉपुलेशन के क्या इंडिकेटर्स हैं, किन बेसिस के ऊपर जनरली व्हेन वी हैव टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज, तो सम बेसिक इंडिकेटर्स आर पेड अटेंशन। वो कौन कौन से हैं? एक तो फर्स्टली वी कंपेयर पॉपुलेशन, ये देखना हो कि किस कंट्री में कम पॉपुलेशन है, ज्यादा है, तो पॉपुलेशन इज कंपेयर्ड। देन एनुअल ग्रोथ रेट, कि हर साल किसी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, एंड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये आपने 10th तक पढ़ा हुआ है। बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 एंड डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000, ठीक। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। तो एनुअल का मतलब हर साल, एवरी ईयर कितना डिफरेंस आता है। Then next is density. Density means density of population. And what is the definition? Population living per square kilometer of area. ये 1 मार्क में आ सकता है। Density means, density of population means number of people living per square kilometer of area, ठीक है। तो ये density। उसके बाद sex ratio. Sex ratio मतलब number of females per 1000 males. 1000 boys हैं तो उनके पीछे how many girls are there, that is called sex ratio. Then next is fertility rate. Fertility rate का मतलब on an average how many issues are birth is given by a lady to issues, कितने बच्चे होते हैं किसी के on an average, fertility rate, ठीक है। Then urbanization का मतलब है how many people are comparatively living in urban areas. Villages में कितने रहते हैं उसके comparatively how many are living in city areas. तो these are the broad indicators which are to be compared, ठीक। तो ये सारा जो डाटा है दिस इज बेस्ड ऑन 2015, उसके ऊपर बेस्ड है ये। नाउ लेट अस सी। अब इसमें थोड़ा सा आप मेन ट्राई टू लर्न, अगर नहीं भी होता है बट मोस्ट प्रोबेबली व्हाट डू वी सी पेपर में, ऐसे ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता कि गिव डाटा। रीजन उसका क्या होता है, जैसे इन आवर स्कूल वी आर यूजिंग दिस बुक, किसी और स्कूल में कोई और बुक होती है, एंड यू वुड बी नोटिसिंग कई बार बुक्स में डाटा भी डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मतलब स्लाइड चेंजेस देयर। तो नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है कि गिव डाटा, रादर दे प्रोवाइड ए टेबल, बोर्ड की क्वेश्चन पेपर में टेबल आ जाता है, देन वी आर आस्क्ड कि नाउ कंपेयर। तो फिर इसमें आप एक बार थोड़ा सा अपने माइंड में आइडिया रख लेना भी ऐसे ऐसे है, अदरवाइज नहीं भी याद होता कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। नाउ लेट अस कंपेयर। See, now let us start with estimated population in millions.
Which country is having the largest population? China, being followed by India, and the least population is Pakistan. सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, चाइना की रफली कहें, चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, इंडिया की 135 से भी ऊपर चल रही है, और पाकिस्तान की 21 के आसपास है. तो पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. ठीक. देन एनुअल ग्रोथ रेट, विच कंट्री इज हैविंग मैक्सिमम ग्रोथ रेट? पाकिस्तान. बस यही आपने कंपैरिजन करना है, एनालाइज करना है. पाकिस्तान इज हैविंग मैक्सिमम ग्रोथ रेट, मतलब वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज मोर, नंबर ऑफ बर्थ्स आर मोर एज कंपेयर टू डेथ रेट. ठीक है. देन लीस्ट इज चाइना, एंड इन बिटवीन मिडल में इंडिया. दैट मीन्स स्टिल 1.2%, दैट मीन्स स्टिल नीड्स टू बी कंट्रोल्ड. अभी हमारी इतनी पॉपुलेशन है, तो दैट मीन्स दिस ग्रोथ रेट इज स्टिल मोर, इट नीड्स टू बी चेक्ड. एंड चाइना इज हैविंग लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिकॉज चाइना, when they started their reform program, so they adopted one other policy, one child policy. China is the only country in the world which adopted one child policy. Strictly people were asked to give birth to one child only, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही थी. और व्हेन पॉपुलेशन ग्रोज तो क्या होता है, रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री दे बिकम स्केर्स. चाइना चाहे हमारा एनिमी कंट्री है, बट स्टिल एक सिंपल एनालिटिकली देखें तो कोई भी कंट्री तभी डेवलपमेंट कर सकते हैं व्हेन इट्स रिसोर्सेज आर मोर एज कंपेयर टू देयर यूजर्स. तो अगर यूजर्स ही, माने पॉपुलेशन ही बढ़ती जाती है, तो रिसोर्सेज हमेशा ही कम पड़ते जाएंगे. तो चाइना को पहले ही थोड़ा सा, दिस वाज देयर गुड पॉलिसी इन ए वे कि दे स्टार्टेड दिस पॉलिसी. बट 2015 तक का टाइम आते आते देन दे रियलाइज्ड कि भी दिस पॉलिसी इज गोइंग टू हार्म देम इन द फ्यूचर. अब इसका होता क्या, चलो हमने उसका नहीं लिखना, नेगेटिव इफेक्ट नहीं लिखने, बस हमने ये याद रखना है कि चाइना ड्यू टू द दिस एडॉप्शन ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड, दे वर एबल टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन. ठीक. अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव तो हो गया कि पॉपुलेशन चेक इज पॉसिबल. नेगेटिव इफेक्ट ये होता था कि व्हेन इन एवरी फैमिली देयर इज ओनली वन चाइल्ड, तो उस बच्चे के ऊपर, उस चाइल्ड के ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है, इकोनॉमिकली बर्डन. नाउ दैट, अब सोच के देखो, एक ही बच्चा है, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है. अब जब उसके पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल, तो उन सबकी जिम्मेदारी एक ही बच्चे के ऊपर आएगी. उसी को अपने माँ बाप को भी देखना है, उसी को अपने, अब माँ बाप का भी एक ही बच्चा था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 30 35 40 साल यही ट्रेंड चले, तो जो मदर है उसको भी अपने माँ बाप का एक ही बच्चा है, जो फादर है वो भी अपने माँ बाप का एक ही बच्चा है. इसका मतलब वो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसकी भी जिम्मेदारी उस जो अभी यंग बच्चा है उसके ऊपर आती है. तो फाइनेंशियली इट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. सेकेंड ये हो रहा था कि वहाँ पे नंबर ऑफ ओल्ड पीपल वाज इंक्रीजिंग. तो यंग बच्चे कम है, ओल्ड लोगों का नंबर, क्योंकि और बच्चे उनका जो ग्रोथ है आना है दुनिया में वो कम है, और ओल्ड लोगों का नंबर बढ़ता जाता है. तो कोई भी जो पॉपुलेशन होती है, कोई भी कंट्री हो, ओल्ड पॉपुलेशन इज नॉट एज प्रोडक्टिव. वर्किंग पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो दैट पॉपुलेशन इज नॉट एज प्रोडक्टिव एज द यंगर पॉपुलेशन. जितना आप लोग काम कर सकते हैं, मेरी उम्र के लोग उतना नहीं कर सकते. जो मेरे से भी ओल्ड है, इस जनरेशन से भी ऊपर है, वो और भी नहीं कर सकते. तो ये बर्डन बढ़ता जाता है. तो ये देखा उस कंट्री ने कि भी ऐसे ऐसे ये इन फ्यूचर आने वाले 10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो नाउ दे हैव स्टॉप दिस पॉलिसी. तो इसमें मतलब ड्यू टू दिस पॉलिसी दे वर एबल टू दिस कंट्रोल देयर पॉपुलेशन. देन नेक्स्ट इज डेंसिटी. तो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हाईएस्ट डेंसिटी इंडिया में, एंड लोएस्ट डेंसिटी चाइना, एंड इन बिटवीन पाकिस्तान. अब चाइना में ये लोएस्ट डेंसिटी का क्या रीजन हो सकता है? सोच के देखिए जरा. On that day I showed you the map also. Area wise China is the biggest country out of these three. सबसे बड़ा कंट्री है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो भी एरिया इतना ज़्यादा है उनका. और यहाँ पर डेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी जस्ट सी एरिया एंड पॉपुलेशन कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं. ठीक. तो एरिया इतना बड़ा है उनका, इस करके ये वैल्यू कम आ जाती है. वो अलग बात है कि ऊपर अपर पार्ट्स में नहीं लोग रह पाते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, बट स्टिल यहाँ पर दैट फैक्टर इज नॉट बीइंग गिवन इंपॉर्टेंस की सर्दी है गर्मी है, वो नहीं दिया जा रहा है. यहाँ सिर्फ ओनली एरिया एंड पॉपुलेशन इज बीइंग कंपेयर्ड. तो दैट इज वाई इंडिया में कम है, चाइना के मुकाबले हमारा एरिया बहुत कम है, तो इस करके मोर डेंसिटी इज देयर. ठीक है. देन सेक्स रेशो हाईएस्ट इज इन पाकिस्तान, देन चाइना में उससे कम, इंडिया में उससे कम. इसका मतलब क्या हो गया? In all these Asian countries, still sex ratio is lopsided. Lopsided मतलब against girl children.
फीमेल्स के अगेंस्ट है. मीन्स इन ऑल दीज 3 कंट्रीज मोर प्रेफरेंस पीपल गिव टू बॉयज. ठीक है, तो दैट इज द मेन रीजन. तीनों कंट्रीज का ये इस तरह का एटीट्यूड तीनों जगह ही सेम है, तीनों कंट्रीज में. देन नेक्स्ट इज फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर लेडी. तो वो कितने हैं, हाईएस्ट कितने हैं पाकिस्तान में. अल्लाह ने दिए हैं तो चलो जी ठीक है, भगवान ने, वो अल्लाह कहते हैं. तो सबसे कम है चाइना में, बिकॉज दे हैव कंट्रोल्ड. मोर ओवर हैबिट्स ऑफ द पीपल हैव बिकम लाइक दैट कि उनको लगता है कि वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू टेक केयर ऑफ मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इकोनॉमिकली प्रेशर जब लोगों को लगता है, इतनी समझ आ जाती है, तो दे ट्राई टू हैव लेस चिल्ड्रन. एंड इन बिटवीन मिडल में इंडिया इज देयर. ओके, एंड पहले ये कर लें फिर मैं बताती हूँ इंडिया में भी क्या हो रहा है. अर्बेनाइजेशन, हाईएस्ट अर्बेनाइजेशन इज इन चाइना. 100 के पीछे, ये 100 के पीछे होता है परसेंट में. 100 लोग हैं तो 56 आर लिविंग इन अर्बन एरियाज. एंड उससे ज़्यादा है पाकिस्तान में, सबसे कम है इंडिया में. तो पाकिस्तान यहाँ पर हमसे बेटर पोजीशन में है एज कम्पेयर टू इंडिया. ठीक, अच्छा. ये फर्टिलिटी रेट में आई वॉज लिसनिंग टू ए लेक्चर, तो उसमें पॉपुलेशन के ट्रेंड्स बता रहे थे. तो उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रेट इज मच मोर एज कंपेयर टू मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. एज कंपेयर टू हिंदू पॉपुलेशन, मुस्लिम जो फैमिलीज हैं देयर, उनके फैमिलीज में ऑन एन एवरेज 10-11 चिल्ड्रन, ऑन एन एवरेज 10 to 11 चिल्ड्रन. बीच में 3-4 की परमात्मा उठा लेता है, मतलब नहीं अच्छी डाइट खाना पीना नहीं होता, इलाज, गरीबी तो है ही है ना. 10-12 बच्चे हों, 2 जने आप हैं, कोई दादा दादी नाना नानी, मतलब 15-20 जनों का परिवार हो तो उसको संभालना कैसे है? तो 3-4 की डेथ हो जाती है ऑन एन एवरेज 10-11. और वही अगर दूसरी पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, तो उसमें ऑन एन एवरेज 3 to 4. और 3 to 4 भी पहले था. अब का जो ट्रेंड है वो 1 and 2 का ट्रेंड है. मतलब आम ही फैमिलीज में 1 चाइल्ड होता है या 2 बच्चे होते हैं, उससे ज्यादा नहीं. तो ये आ रहा था कि इफ दिस ट्रेंड इज बीइंग रिमेन्ड फॉलोड, तो बहुत ही जल्दी कंट्री की जो डोमिनेशन है दैट विल बिकम मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, अगर इसी स्पीड से रहा, ये स्पीड रही. एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रेजिक सिचुएशन फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ट्रेडिशनल कंट्री लाइक अवर्स. ठीक है, चलो एनी हाउ वो नहीं लिखना हमने, ये तो वैसे मुझे याद आ गया, तो देन आई टोल्ड. चलो, दिस वाज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. देन नेक्स्ट इज, ये सारा जो बेटे एक्सप्लेनेशन है ये आपने याद नहीं करना है, ओनली विद द हेल्प ऑफ टेबल एवरीबडी कैन एनालाइज, कंपेयर ही करना है हमने. देन नेक्स्ट इज, प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज, ग्रोथ इंडिकेटर्स. ये आप बुक से ही बता देते हो मैं आपको. ग्रोथ इंडिकेटर्स में है जीडीपी की ग्रोथ हमने देखना है यहाँ पे. जीडीपी मीन्स यू नो वेरी वेल, टोटल प्रोडक्शन इन ए कंट्री इन 1 year फिजिकल टर्म्स में. ठीक है, तो अब उसमें यू प्लीज टिक मार्क दिस 2011-15, टिक मार्क दिस कॉलम ओनली एंड डिलीट दिस 80 to 90, 1980-90, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज हमें जो करंट है, लेटेस्ट है, उसी की हमने याद करना है. तो इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है, एनुअल ग्रोथ रेट, दैट इज 6.7%. हर साल 100 के पीछे 6.7 के स्पीड से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है. चाइना का सबसे ज्यादा है 7.9 और पाकिस्तान का सबसे कम है 4%. ये बस आपने याद करना है यहाँ पे. हाईएस्ट ग्रोथ रेट इज सीन इन चाइना, बीइंग फॉलोड बाय इंडिया, एंड द लास्ट नंबर इज ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो पाकिस्तान की सबसे कम है. और प्रेजेंट भी, ये बुक्स भी पहले की होती है, डाटा भी पहले का है. अगर और प्रेजेंटली कंसिडर करें तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, यू विल बी हैप्पी टू नो, जस्ट लाइक, आई होप यू रिमेंबर, अफ्रीका में एक कंट्री है इथोपिया, है ना, एक इथोपिया देश है, बड़ा मतलब बेकार तो चलो नहीं, इंसान ही है वो भी, बेकार इन द सेंस कि ग्रोथ है ही नहीं वहाँ पे, अभी भी पुराने होगा 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 यही काम करते हैं, है ना. तो बड़ा मतलब एक पुअर कंट्री, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, है ना. तो पाकिस्तान की जो आज की हालत है वो इथोपिया से भी गई गुजरी हालत है. यहाँ लिखना नहीं, अपना गुस्सा निकाल दे पेपर में कि पाकिस्तान इथोपिया से गया गुजरा है, ये प्रेजेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना इनकम नहीं है. वहाँ पे आटा जो है वो 700 रुपये 10 kg, 700 के आसपास. अपने यहाँ ऑन एन एवरेज हम 400 का भी ले, बाकी तो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, एक ऑन एन एवरेज भी मान ले 380 का या 390 का, 400 का भी ले लें, तो वहाँ पे आटा का जो एक पैकेट है 10 kg का वो 700 रुपये के अराउंड है.
महंगाई रेट, इन्फ्लेशन रेट इज मच मोर, और वहाँ पे पैसा है नहीं, इनकम का कोई सोर्स है नहीं, अमेरिका ने देना बंद कर दिया और कोई देता नहीं है, तो वहाँ पे वो क्योंकि उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के करके फ्रॉम ऑल साइड्स nobody is like to give anything to Pakistan, तो सिचुएशन इज वेरी पुअर इन दैट कंट्री। ठीक, तो बस इसका इतना ही याद करना है, बाकी वो लाइन्स आर नॉट टू बी लर्न, वो नहीं लिखनी। अच्छा, नाउ प्लीज कम टू, एक आगे दिया हुआ है परचेजिंग पावर पैरिटी, एक बॉक्स में वन टर्म इज गिवन परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मीनिंग होता है कि हाउ टू कंपेयर द कंट्रीज, कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, जीडीपी है, हाउ कैन वी कम टू नो कि विच कंट्री इज हैविंग मोर जीडीपी एंड विच कंट्री इज हैविंग लेस जीडीपी। रीजन क्या है इसका, बिकॉज इन ऑल द, if we talk in terms of these three countries only, तो in all the three countries different currencies are there। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी है तो रुपी है, बट उनका अपने हिसाब से कैलकुलेशन है। इंडिया का अपना रुपी अलग है, चाइना की युआन है, ये याद रखना है आपने, आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ चाइना? युआन, YUAN। ठीक, तो तीनों कंट्रीज का अलग है। ऐसे ही इफ वी टेक अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो सबकी अपनी अपनी करेंसी है, तो हमें कैसे पता चले कि कौन से कंट्री का जीडीपी इज मोर एंड किसका कम है? हाउ कैन वी कम टू नो? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमीज का यूज किया जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी। इसका मतलब होता है कि एक कॉमन करेंसी को ले ले, एंड वो कॉमन करेंसी इन द मॉडर्न टाइम अमेरिकन डॉलर दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय ऑल, सभी जगह वो चलता है। तो अमेरिकन डॉलर की टर्म्स में ये देखा जाए कि अगर मैंने, मान लो आपके बैग में जितनी बुक्स हैं, पेन, कॉपी है, जो भी सामान है, अगर इतना सामान इफ वी आर परचेजिंग इन इंडिया, तो हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? अगर यही बैग का आपका सामान, इफ यू आर परचेजिंग द सेम सेट ऑफ थिंग्स, गुड्स इन चाइना, तो आपको कितने चाइनीज युआन खर्च करने पड़ेंगे? अगर सेम ही चीज़ें इफ़ यू आर बाइंग इन पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में अगर हम यही सेम चीज़ों को बाय करते हैं, तो देन हाउ मच एक्सपेंडिचर डू वी हैव टू इनकर, कितना खर्च करना पड़ेगा? अब वो क्योंकि सबका अलग अलग है, तो दैट मीन्स कि हमें किसी जगह एक कॉमन पैरिटी मतलब एक सेम लेवल हमें लेके आना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए। तो अगर हम अमेरिकन डॉलर की टर्म्स में देखें कि हमें कितना प्राइस देना पड़ता है फॉर बाइंग सेम सेट ऑफ कमोडिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वो जो प्रिंसिपल है, वो जो मेथड है, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। कि अगर हम सेम सेट ऑफ कमोडिटीज वी आर बाइंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देन हाउ मेनी अमेरिकन डॉलर्स वी हैव टू स्पेंड इन डिफरेंट कंट्रीज, अब वो अपने एक्सचेंज रेट के हिसाब से कितना खर्च करना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट को कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो व्हेन इन दिस चैप्टर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपैरिजन ऑफ जीडीपी, तो उसका मतलब है ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है किसकी टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। इतना इतना हमारा जीडीपी है, इतना इतना वैल्यू है। ठीक, उसके बाद नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। नाउ सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन मतलब, सेक्टोरल वर्ड हैज कम फ्रॉम सेक्टर्स। तो इकोनॉमी के एंगल से वी टॉक इन टर्म्स ऑफ विच सेक्टर्स? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। all activities, economic activities, they get adjusted in one or the other sector। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, ये कौन से सेक्टर में आता है? ये कौन से सेक्टर का काम है? टर्शरी सेक्टर का काम है, सर्विसेज या टर्शरी सेक्टर। आपके पेरेंट्स की कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो किस सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। आपके पेरेंट्स कोई फार्मिंग का काम करते हैं या उससे रिलेटेड काम करते हैं? प्राइमरी सेक्टर। ठीक, तो रिलेटेड का मतलब मिलती जुलती एक्टिविटीज। तो ब्रॉडली हम 3 सेक्टर्स क्या लेते हैं। नाउ वी हैव टू कंपेयर, यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, नाउ इट विल टेक टाइम टू राइट द वैल्यूज, तो मैं बुक से ही हेल्प से ही करा रही हूँ। अब इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि भाई इन तीनों सेक्टर्स में पॉपुलेशन का कितने परसेंट पार्ट प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है, कितना परसेंट पार्ट इज वर्किंग इन सेकेंडरी, कितने परसेंट पीपल आर वर्किंग इन टर्शरी सेक्टर। ठीक, एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर यू कैन राइट डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, ऊपर यू कैन राइट, और एम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट, कितने परसेंट लोग क्या क्या कर रहे हैं। और जो फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इसका मतलब है कि अगर हमारा 100 रुपीज़ है हमारी टोटल जीडीपी, टोटल प्रोडक्शन 100 रुपीज़ के इक्वल है मनी टर्म्स में ले लें, तो उसमें से कितना मनी इज कमिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, कितना पैसा जो है मनी दैट इज कमिंग फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, और कमिंग फ्रॉम टर्शरी सेक्टर।
तीनों सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या वो बना के दे रहे हैं और कितने लोगों को काम पे लगा रहे हैं, ये दो चीज़ों को नाउ वी हैव टू कंपेयर. ठीक, नाउ लेट अस फर्स्टली सी, थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं, हाफ हाफ. पहले आप देखिए ओनली दिस पार्ट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. लीव असाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको छोड़ दे अभी, मतलब पहले एक एक पार्ट कर लेते हैं. नाउ यू प्लीज कंपेयर कि इन एग्रीकल्चर सेक्टर which country is contributing more, which sector is contributing more in agriculture sector, या ऐसे बोल दे in all the three countries contribution of agriculture is maximum in which country. पाकिस्तान में 25, अगर 100 रुपए 100 रुपीज आते हैं तो उसमें से 25 रुपीज का जो काम है पाकिस्तान में होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है. और लीस्ट किस में आता है? चाइना में. इसका मतलब क्या हो गया कि चाइना में एग्रीकल्चर का रोल उनकी नेशनल इनकम में, उनके जीडीपी में सबसे कम है, और इंडिया का मिडल में आ जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में. क्यों है वो मैं बाद में बताती हूँ. देन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज इन चाइना 43 आउट ऑफ 100, 43%. उसके बाद बीइंग फॉलोड बाय इंडिया, और लास्ट में आ जाता है पाकिस्तान. ठीक, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर को अगर ले तो अब इसमें आप देखो पाकिस्तान 54, स्लाइटली लेस वैल्यू इज देयर फॉर इंडिया 53, मतलब एक आसपास ही है, एंड देन लास्ट वन इज चाइना. मतलब ये है इसका, अगर हम कंपेयर करें तो इसका मतलब ये है कि चाइना में, एज वी हैव studied earlier, because they adopted this policy of GLF in the beginning, they encouraged their secondary sector. वहाँ पर एग्रीकल्चर को भी इतना नहीं जोर है, सर्विसेज को भी है तो है, सर्विसेज को भी, बट इतना नहीं है जितना वो सेकेंडरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं. आपने कभी नोटिस किया हो, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में चाइनीज सामान सब जगह मिलता है. इवन अमेरिका जैसी इकोनॉमी जिसको हम नंबर 1 दुनिया का मानते हैं कंट्री, अमेरिका के कंट्री में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना से बन के वहाँ जाती हैं. अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो लैटिन अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम सामान चाइनीज़ सामान यूज़ होता है. चले ना चले वो अलग बात है, गारंटी कोई नहीं है ना, बट वो क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है. इसका मतलब चाइना ने अपने कंट्री में, एक तो उनकी पॉपुलेशन इज़ ह्यूज पॉपुलेशन, लेबर वहाँ पे सस्ती है. जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ लेबर हमेशा चीप मिले, क्योंकि इतने लोग हैं, काम हर कोई चाहता है, तो लेबर की जो वेजेस होती है वो कम होती हैं. और मोरओवर फ्रॉम द बिगनिंग दे गेव मोर स्ट्रेस टू देयर सेकेंडरी सेक्टर पे, हमने बनाना है, बना के एक्सपोर्ट करना है. उनकी पॉलिसी ये रही है शुरू से, अभी भी यही है. तो इस करके उनका जो ज़्यादा ध्यान है, उनका जो ज़्यादा जोर है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर है, तो इस करके इंडस्ट्री का रोल ज़्यादा है. एग्रीकल्चर के ऊपर उनका इतना अटेंशन नहीं है कि भाई ठीक है जितना हो गया ठीक है, वो भी करते हैं, बट एज कम अगर हमने सेक्टर्स को कंपेयर करना है तो उनका स्ट्रेस इज मोर ऑन सेकेंडरी सेक्टर. और पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन स्ट्रेस रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद से 50s के बाद से देखें तो नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर है. सर्विसेज सेक्टर भी हमारे यहाँ कब से ज़्यादा डेवलप हुआ है? स्पेशली आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स के बाद से. उसके पहले भी हमारा इतना सर्विसेज सेक्टर नहीं था, रादर एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा हमारा था, ध्यान था या कंट्रीब्यूशन था. रिफॉर्म्स के बाद से इतना ज़्यादा हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन का प्रोसेस फास्ट हुआ है, प्राइवेटाइजेशन का सारा, कि ग्लोबलाइजेशन ये सारे कुछ हुए कि अब सर्विसेज सेक्टर हमारा आउटसोर्सिंग करता है बहुत ज़्यादा. हमारी आप देख लो 53%, अगर 100 रुपए की इनकम है तो उसमें 50% से ज़्यादा हमारी इनकम सर्विसेज सेक्टर से आ रही है. और उसमें भी आईटी सेक्टर का बहुत कंट्रीब्यूशन है रिफॉर्म्स के बाद से. ठीक, अच्छा, नाउ इफ वी कंपेयर वर्कफोर्स, लोगों का देखें कि हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन विच सेक्टर. नाउ लेट अस सी, एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम पीपल आर वर्किंग इन विच कंट्री. अब फर्स्ट पार्ट को, टेबल को छोड़ दे. नाउ कंपेयर दिस ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, ओनली दिस पार्ट. अब मैक्सिमम पीपल आर वर्किंग इन इंडिया. अब आप थोड़ा सा साइड बाय साइड दूसरा भी कंपैरिजन देखो. 50% पॉपुलेशन इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर, बस उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 17%. इसका मतलब क्या हो गया? क्या है यहाँ पे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. जरूरत से ज्यादा लोग भरे पड़े हैं फार्मिंग के कामों में जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं भी है. ठीक, बट उनको सिंस दे डोंट नो एनी अदर स्किल, और कुछ सीखते नहीं है, टेक्निकली नहीं ट्रेंड होते हैं, तो फिर वही लगे रहते हैं. तो इतने लोग काम करके भी कंट्रीब्यूशन इज वेरी निग्लिजिबल. उसके बाद सेकंड इज इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम, चाइना में उससे कम है,
पाकिस्तान में हमारे से कम है, मतलब पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहने वाला कंट्री है, पीपल वाइज, एम्प्लॉयमेंट वाइज देखें, फर्स्ट ही लाइन को बोल रही हूँ। और चाइना में ओनली 8% पीपल आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। 28% लोग काम करके 9% का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और 50% लोग काम करके ओनली 17% का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये है। उसके बाद सेकेंड, इंडस्ट्री में चाइना में हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग परसेंटेज, 29% पीपल दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, 21% पीपल गेटिंग वर्क इन इंडिया इन सेकेंडरी सेक्टर, और पाकिस्तान में 23। बट आप क्वालिटेटिवली आप कंपेयर करो, 29% पीपल सेकेंडरी सेक्टर में उनका काम है, और वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं इंडस्ट्रीज का, 43%। मतलब उनका इतने भी 29% भी लोग इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। देन सर्विसेज सेक्टर में इंडिया में 29% काम कर रहे हैं, और चाइना में 43, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन with regard to services sector, 43% people are working in services sector, but उनका contribution as compared to India and Pakistan GDP वाइज देखें तो थोड़ा कम है, ठीक। तो जो इंडिया और पाकिस्तान है, वेदर पाकिस्तान के साथ हमारा कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, बट जो ठीक बात है, पॉजिटिव है, वो तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पाकिस्तान में भी सर्विसेज सेक्टर के ऊपर, IT सेक्टर के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया, ठीक है। अब इसका एक अगर हिस्टोरिकली देखें तो आई होप यू रिमेंबर इन 10th क्लास यू हैव डन वन चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एक किया था, इकोनॉमिक्स में किया था, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आया था, एक आया था सेक्टोरल शिफ्ट। बाकी कल करते, ठीक है जी। विद दिस, बिकॉज नेक्स्ट टीचर ऑल्सो हैज टू कम, रेस्ट वी डू टुमारो। थैंक यू ऑल। सोनाली मैम, यू कैन एंड द मीटिंग नाउ।